Hello student, good morning. How are you? Today, me Disha Tripathi, your English teacher, is with another new chapter of your NCERT book. That is chapter number 6, Expert Detectives. And the writer of this chapter is Sharda Dwivedi. Sharda Dwivedi, chapter number 6, Expert Detectives. So we start this chapter. This chapter starts with a short introduction, that is Nishad. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. So this is about a boy. His name was Nishad, and his another name was 7. 7 because 7 is also the name means the 7th note of musical instrument, क्योंकि जो म्यूजिकल स्केल होता है उसमें जो 7 है उसमें भी 7 सुर होते हैं, इसीलिए निशाद को 7 के नाम से भी प्यार से बोला जाता था. एंड अनदर कैरेक्टर इज हिज सिस्टर माया, एंड बोथ आर वेरी क्यूरियस अबाउट अ पर्सन. हिज नेम वॉज मिस्टर नाथ. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room. Marble rolls मतलब हम जो एक गेम खेलते हैं पत्थर से कंकड़ से उसको ऐसे धीरे से फेंक कर आगे जंप करते हुए जाते हैं, that is called marble rolls. And Nishad gets a chance to see him. तो निशाद को उस मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिलता है. अब हम further in this chapter we come to know that is he a crook on the run. Crook means criminal. Crook means criminal. So जब वो रूम के अंदर देखता है, झांक कर देखता है, तो उसको पता चलता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है. So let us start the chapter Expert Detectives. As we walked back towards the clinic, 7 said he doesn't look anything. As he walked back towards the clinic, 7 said, he doesn't look anything like a monster. Clinic because their mother was a doctor. So they used to go to the clinic. Nishad and Maya's mother was a doctor. So they used to go to the clinic. So Maya और निशाद की जो mother थी, she was a doctor. तो वो उन लोगों का clinic में आना जाना लगा रहता था. So Nishad said 7 means Nishad, remember. So he doesn't look anything like a monster. जब क्लिनिक से दोनों लौट रहे थे तो निशाद ने माया से बोला कि वो एक क्रिमिनल के एक मॉन्स्टर राक्षस की तरह नहीं लगता है माया. But did you see how thin he is? May he is very poor and can't afford to eat. Then Nishad continued his sentence that Maya, क्या तुमने उसको गौर से देखा कितना दुबला पतला है? हो सकता है he was a very poor man, वो बहुत ही गरीब इंसान हो और खाने के लिए कुछ अफोर्ड भी ना कर सकता हो. He can't be poor if he is a crook on the run. I told him. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. So Maya said he can't be poor. वो गरीब नहीं हो सकता if he is a crook on the run. अगर वो क्रिमिनल है, क्रूक मीन्स क्रिमिनल है, तो वो गरीब नहीं हो सकता. I told him. He's probably got millions of rupees stashed away. Stashed मतलब छिपा के रखा हुआ है. हो सकता है उसके पास millions of rupees हो, लेकिन उसने वो सारे छिपा के रखे हुए हों कहीं पर उसके रूम में. Do you really think he is criminal, Maya? Then Nishad asked again to the Maya that do you really think? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इंसान एक क्रिमिनल होगा? He doesn't look like one, but वो ऐसा लगता नहीं है. निशाद looked doubtful. निशाद थोड़ा डाउटफुल होते हुए उसने बोला वो लगता नहीं है क्रिमिनल की तरह. क्या तुम्हें सच में लगता है वो क्रिमिनल होगा? Of course he is one. 7. I said. I means here Maya. माया कहती है कि हाँ of course 7 वो एक क्रिमिनल है. And he certainly isn't starving. Starving मतलब hunger. Okay? Hunger. वो और कोई वो भूखा कोई नहीं रहता है. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. Mr. Mehta ने हमें बताया था रमेश जो कि सर्वेंट था वो रोज नीचे से उसके लिए खाना रेस्टोरेंट से खाना लेकर आता है. तो ये कोई सच बात नहीं है कि वो भूखा रहता है, वो कोई भूखा नहीं रहता है.
But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can we possibly have money to pay for food? Nishad said. निशाद बोलता है कि लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि वो कोई काम नहीं करता, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा खाने के लिए, पैसा देने के लिए उसके पास में पैसा कहाँ से आएगा? Exactly, I exclaimed. So Maya exclaimed मतलब खुशी से उछलते हुए बोलती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तुमने. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and. तो Maya continues sentence that इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ उसके पास बहुत सारा पैसा है और probably उसने रूम में कहीं पर किसी ट्रंक में या कहीं पर बहुत सारे पैसे जवाहरात सब कुछ छिपा कर रखे हुए हैं. What rubbish? निशाद interrupted. निशाद बीच में इसको रोकते हुए बोलते क्या फालतू की बातें कर रही हो? Rubbish means useless. Rubbish means useless. Rubbish. Useless. So निशाद बोलता है what rubbish, ये क्या फालतू की बातें तो कर रही हो? I know I'm right, stupid, I told him. लेकिन माया कंटिन्यू करती कि नहीं मुझे पता है, I'm right, मैं सही हूँ. By the way, Savan, did you see his scares? I couldn't. It was too dark. But I bet he got them during a shootout with the police or something. Then Maya continued his sentence that फिर भी by the way तुमने उसके चेहरे पर जो निशान थे वो निशान देखे थे? मैं ठीक से नहीं देख पाई क्योंकि अंधेरा हो रहा था. ज़रूर वो निशान उसको किसी शूट में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसके वो निशान लगे होंगे. Mummy told us quite clearly they were burn scars. Nishad said firmly. तो निशाद बोलता है मम्मी ने because their mother was a doctor. So निशाद बोलता है कि मम्मा ने पहले ही हमको बताया हुआ है कि उसके वो जो निशान है वो burning scars है, जले हुए कहीं पर जलने के वो निशान है. Perhaps the police had to set his house on the fire to force him out, I suggested. Savan looked unsure. तो माया continue his sentence that हो सकता है कि पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए उसके घर में आग लगा दी हो जिससे उसके चेहरे पे वो निशान आ गए. बट Savan was unsure. उसको उसकी बातों पे यकीन नहीं होता. Savan means निशान. On the Monday following Mama's birthday, Savan went alone with her to the clinic at Girgaon as I spending the evening with a school friend. सो मंडे को मम्मा का बर्थडे था, मामाज बर्थडे था और Savan उनके साथ में क्लिनिक गया था और मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रही थी. When they returned, जब वो लौट के आया, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. So और जब मम्मा और Savan शाम को लौट के आए क्लिनिक से तो निशाद ने मुझे बताया कि आज उसने मिस्टर नाथ को बहुत करीब से देखा था और जब मुझे ये पता लगा तो मुझे बहुत अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि क्यों मैं आज उनके साथ में क्लिनिक नहीं गई. Savan had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Gaunt मतलब सिकली, बीमार सा लगने वाला. तो जो Savan था वो कुछ अपसेट लग रहा था क्योंकि जो मिस्टर नाथ से वो जब मिला तो उन्होंने उसको मिस्टर नाथ को देखा तो उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे थे, सिकली लग रहे थे, गॉन्ट लग रहे थे. एंड ही वॉज श्योर कि वो रोज भूखे रहते हैं. ही वॉज स्टार्विंग. स्टार्विंग मीन्स हंग्री. स्टार्विंग स्टार्विंग मतलब हंग्री, विदाउट फूड. या फिर हम लिख सकते हैं इसको without food. So Nishad, he was quite upset because he felt that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." Savan ने बताया कि वो मिस्टर नाथ के दरवाजे पे गया और उनको नॉक करते हुए, दरवाजे को नॉक करते हुए उसने आवाज़ लगाई कि "Open the door, Mr. Nath." मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलिए. The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और मुझसे वो पूछता है क्या फिर से तुम अपना मार्बल खो चुके हो? मार्बल मीन्स गेम.
जो हम पत्थर छोटे छोटे फेंक कर जंप करते हैं, दैट इज द मार्बल रॉक। He had obviously recognized my brother. और उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो Nishad said, no, I haven't lost my marble now. And he snatched his hand, उसके हाथ को खींचा निशाद ने और उसके हाथ में चॉकलेट्स रख दी बहुत सारी। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. Then Maya asked Nishad that did you get a chance? क्या तुम्हें कोई मौका मिला कि उसके ट्रंक में, एक रूम में जो बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है ट्रंक, उसमें खोलकर अंदर देख सको उसमें क्या है? Nishad looked disappointed. वो बहुत उदास सा नजर आया। He didn't even ask me in. निशाद बताता है उसने तो मुझे रूम के अंदर आने को भी नहीं कहा। Then he smiled. But I did find something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. लेकिन मुझे कुछ बात तो पता चली है माया, मैं नीचे गया और मुझे रमेश से बात करने का मौका मिला। Good for you, Mr. Detective, I said. So Maya said, good for you, Detective, Mr. Detective. He addressed him as a detective. So उसको appreciate करती है कि बहुत अच्छा Mr. Detective, patting him on the back. Patting मतलब थपथपाना। उसकी पीठ को थपथपाते हुए वो उसको अप्रिशिएट करती है। गुड मिस्टर निशाद, मिस्टर डिटेक्टिव, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपर्ली। मुझे आशा है तुमने सारे क्वेश्चंस बहुत ढंग से पूछे होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन बहुत खुश नजर आया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in the morning and 1 in the afternoon। तो रमेश ने मुझे बताया कि दिन में 2 बार मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके जाता है, 1 at morning, एक सुबह एंड अनदर एट इवनिंग, एक शाम के वक्त, एंड 2 cups of tea और 2 कप चाय लेके जाता है, 1 in the morning and 1 in the afternoon। Ramesh says he is not very particular about what he eats. It always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। तो रमेश ने उसको बताया निशाद को कि खाने के मामले में मिस्टर नाथ इज नॉट सो मच चूजी, वो सिंपल सा फूड लेते हैं, 2 चपाती, कुछ दाल और कुछ सब्जी, एंड ही पेज कैश, और उसको पैसा भी हाथों हाथ देते हैं, कभी कभी कुछ टिप भी उसको साथ में देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। सो निशाद बताता है कि रमेश ने मुझे और कुछ बड़ी अजीब सी बात बताई। 7 added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitors talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. तो रमेश ने मुझे बताया कि हर संडे को वो 2 लंच लेके जाता है, 2 लंच बॉक्स लेके जाता है और एक ही इंसान हर संडे को उनके मिलने आता है जिसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में वो कैसा लगता है। He is a tall, fair, stout मतलब छोटा, कम हाइट वाला, and wears spectacles और हमेशा चश्मा पहने हुए रहता है। रमेश और ये जो विजिटर था, स्ट्रेंजर था, वो बहुत ज़्यादा बोलता है और इसके अपोजिट मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं। Well done, Nishad, I told him. Maya said, well done. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. तो माया से बोलती है बहुत अच्छा, तुमने जो इन्फॉर्मेशन, जो इंक्वायरी की है, इन सारे इंक्वायरीज को हम ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे और इनसे किसी कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे कि वो क्रुक मीन्स क्रिमिनल है या नहीं। How you do go on, Maya? 7-sided. How can you possibly imagine he's crook? He looks so ordinary. लेकिन तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो क्रिमिनल है? वो तो बहुत ऑर्डिनरी सा लगते हैं दिखने में। Criminals can look quite ordinary, smartly. I retorted. तो माया कहते हैं क्रिमिनल्स भी बहुत ऑर्डिनरी और सिंपल ही लगते हैं। Did you see the picture of the Hyderabadi house cracker in the paper yesterday? क्या तुमने कल के पेपर में वो हैदराबादी हाउस ब्रेकर का फोटो देखा था? He looked like any man on the street. वो भी गली में कोई मामूली से इंसान को चलने वाला ही जैसा लग रहा था। The monsoon broke the next day. दूसरे दिन से बारिश होना शुरू हो गई। Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with their fury, flooding the streets with a heavy downpour. दूसरे दिन से बारिश स्टार्ट हो गई,
बहुत तेज़ बिजली का चमकना शुरू हो गया, गलियों में पानी बहुत तेज़ बह रहा था, बाढ़ जैसे हालत हो गई थी, बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी। एंड थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फरी फ्लडिंग द स्ट्रीट्स, मीन्स जो स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, उनमें पानी बहुत बुरी तरह से बह रहा था। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडे, और स्कूल समर हॉलीडेज के बाद में खुलने वाला था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन इतने बाढ़ वाले रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं चल सकता था, कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती थी। सो दिस डे वॉज अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे फॉर अस, एक हॉलीडे जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, तो हमको एक हॉलीडे और मिल गया। I thought I had spent the time usually. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. और मैं अपने बेडरूम में जाकर एक शीट ऑफ एक पेपर लेकर अपनी चेयर पर मैं बैठ गई। I wrote in large block letters, और बड़े बड़े लेटर्स में मैंने लिखना शुरू किया। Catching a crook. Crook means criminal. Expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. This is what Maya wrote in a paper. ये वो सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन है जो माया ने अपने पेपर में लिखना स्टार्ट किया। सबसे ऊपर लिखा कैचिंग अ क्रूक, क्योंकि both of them considered themselves as a detective. उनको लग रहा था, अपने आप को डिटेक्टिव समझ रहे थे और इस काम को एज अ डिटेक्टिव परफॉर्म करना चाह रहे थे, तो वो शीट में ऐसा लिखना शुरू कर दिया। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Savan, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, और आधे घंटे बाद में हाफ एन आवर लेटर मैंने सेवन की तरफ देखा, जो कि बिस्तर पे उल्टा लेटा हुआ था, अपने चिन को अपने हाथों में, अपने हथेलियों में लेकर लेटा हुआ था और एक कॉमिक को पढ़ रहा था। Want to hear what I have written? I asked. मैंने उससे पूछा, क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? Seven nodded. So मैंने पूछा, जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन हमने की है मिस्टर नाथ को लेकर, वो सारी मैंने फैक्ट्स को एक सीक्वेंस में लिख लिया है, क्या तुम सुनना चाहोगे? तो सेवन जो है वो गर्दन अपनी हिला देता है। फैक्ट नंबर 1, I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. हमें उसका फर्स्ट नेम पता चल गया है, मिस्टर नाथ। Do you think that's his real name, Maya? निशाद asked. निशाद पूछता है, क्या तुम्हें लगता है उसका असली नाम होगा? Probably not. हो सकता है नहीं। I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो हो सकता है वो उसका गलत नाम हो, सही नाम ना हो। Fact number 2, I read on. The tenants at Shankar's house say he is mad, strange and unfriendly. शंकर के हाउस में जो टेनेंट्स रहते हैं वो बताते हैं कि ही इज मैड, वो पागल है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है। नंबर 3, he doesn't talk to anyone and he is mannerless. But he did talk to us, Maya. And Mama says he is very polite. निशाद attracted, लेकिन निशाद बोलता है, लेकिन मम्मा तो बताती है कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है बात करने में। He only talked to us because he had to. वो सिर्फ हमसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसको हमसे काम है, because वो मम्मा का एक पेशेंट है। I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. क्योंकि उसको मम्मा से इलाज करवाना है तो उसको पोलाइट तो होना ही होगा। Fact number 4, he doesn't receive any letters. 7 noted. Number 5, he has been living in a room 10 of Shankar house for more than a year. एक साल से ज़्यादा समय से वो रूम नंबर 10 में रह रहा है। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all days. दिन भर अपने रूम में बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है। नंबर 7, the kids in Shankar's house and even some of his grown-ups are scared of him. शंकर के घर में रहने वाले बहुत सारे बच्चे और यहाँ तक कि बड़े लोग भी उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for a spectral fair fat man. उसके पास में कोई नहीं आता except a single man. Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. We discussed it later. He doesn't care what he eats, pay his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything, 7? लास्ट में माया बोलती, क्या मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ 7? Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely.
इफ़ इट डजंट हैव एनी फ्रेंड। निशात मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा था, ये बात मुझे पता है। निशात ने सिर्फ एक ही चीज़ की, वो बेचारा आदमी बहुत अकेला महसूस करता होगा। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो मैंने बोला कि किसी क्रिमिनल का कोई दोस्त कैसे हो सकता है। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, एटलीस्ट उसका एक फ्रेंड तो है जिसको हर संडे को मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then that man must be Mr. Nath's accomplice in the crime, I said. Maybe he keeps all the loots and he comes now and then to give part of it to a partner, Mr. Nath, for expenses. That's it, I'm sure I'm right. तो माया बोलती मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि हर संडे को जो इंसान, जो आदमी उनसे मिलने आता है, स्ट्रेंजर जो उससे मिलने आता है, हो सकता है उसके क्राइम में उसका पार्टनर हो, और हर संडे को वो उसका पार्ट, पैसे मनी का पार्ट उसको देने आता हो, जिससे वो अपने जो सारे एक्सपेंसेस हैं उनको वो दे सके। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous steps. लेकिन निशाद को यकीन नहीं होता माया की बातों का। वो बोलता है कि वो रमेश को कितने प्यार से टिप देता है, वो एक क्रिमिनल नहीं हो सकता है। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing for keep quiet. Then माया बोलती है हो सकता है रमेश को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता हो, इसलिए मिस्टर नाथ रमेश को कुछ टिप देते हों उसकी बात को छिपाने के लिए। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, Seven? I asked. I will cooperate only if you give up this idea about him being a escaped crook. Said Seven, you really make me angry. तो निशाद को गुस्सा आने लगता है, तो माया बोलती है अगर तुम ये एटीट्यूड रखोगे तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन को कैसे पूरा करेंगे। दैन निशाद बोलता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ दूँ तो तुम्हारे दिमाग से ये थॉट निकाल दो कि वो एक क्रिमिनल है। I almost had hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is nobody, what is the idea of bothering about him? Please tell me. तो माया को गुस्सा आता है, बोलती है अगर तुम्हें लगता है वो क्रुक नहीं है तो ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट क्यों किए तुमने और मुझे क्यों टेंशन दी तुमने। Nishad looked thoughtful. I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friend and lives now. Nishad बोलता है मैंने सिर्फ ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे वो देखने में बहुत दुबला पतला लगता था और लगता था उसके पास शायद कुछ खाने को भी नहीं है और बहुत अकेला वो महसूस करता होगा, उसके कोई दोस्त भी नहीं है, सिर्फ एक आदमी है जो उससे मिलने आता है। Try to understand, Seven. I told him if he lived in Shankar's house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. तो माया निशाद को समझाती है कि मुझे समझने की कोशिश करो, अगर एक साल से वो शंकर के घर में रह रहा है, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अपने आप को इस दुनिया से छिपाना चाहता है ताकि कोई उसको पहचान न ले और पुलिस को ना पकड़ा दे। Maybe no one's tried to make friends with him, Nishad protested. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I am going to try and to be friend. Nishad बोलता है मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ मैं उसका दोस्त बनूँ। Friend with a crook. Hey, you are crazy, Seven, I said. माया बोलती है क्रिमिनल से तुम दोस्ती करोगे, क्या तुम पागल हो गए हो? The cops will take you to the jail. The cops means policeman. With him, उसके साथ में पुलिस तुम्हें भी ले जाएगी. Do you want that to happen, you idiot? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. So, निशाद मेरी कोई बात नहीं सुनता और रूम से बाहर चल जाता है और जो सारी थ्योरीज थी उनको मैं सोचने लगती हूँ. So, this is a part from Sharda Dwivedi's book and this is an incomplete matter. Now, you read this chapter from your book and if you have any doubts, we will resolve it in the next class. Thank you very much.